I'm starting the chapter Kathmandu from your book. We would be doing the summary as well as a complete explanation along with NCERT, right? Before we go to the chapter, let us think what this chapter is all about. आप में से कई बच्चे गए होंगे काठमांडू, तो it's a very easy place to go from Delhi, because we don't have the visa problems to Nepal. They are all visa free. So you can reach Kathmandu either by air or by train. Means अब train से या बस से जाना है, तो what is the mode is from here to Bihar. Sitapur is the Sitamarhi is the last point. We can get off there, and from there again you have to catch a bus after having the small legal procedures because you are crossing the international border. फिर आप जो हो बस से वहां जाकर you can enjoy. Or if you want to go for a direct bus also, you have the direct bus also, which starts from Anand Vihar at 11 o'clock in the morning. And I think it takes around 36 hours to reach Kathmandu. Kathmandu is the capital of Nepal, not very developed. It's not like what we call as a foreign trip, but yes, of course, it's a beautiful place. Full of monasteries, Buddhist आपके. Then the very famous पशुपतिनाथ मंदिर, which is one of the India Hindus का जो एक मतलब main आपका जो तीर्थ बोलते हैं, that is over there. And one more is also there. वहां पर दो आपके main तीर्थ है. And it is said that जो हमारे हिंदू धर्म के सारे तीर्थ होते हैं उनमें सबसे हाईएस्ट होता है. And Pashupatinath is very famous. In this chapter, we are going to just get a glimpse of the same. This chapter is a travelogue. Travelogue का मतलब होता है travel account. आजकल तो we are having the word called blogs. Travel blogs. क्योंकि हम लोग नेट पर लिखते हैं. तो पहले क्या होता था, people used to write it in the articles in the newspapers. So it's a travelogue of a very famous writer called Vikram Seth. Vikram Seth is a very eminent writer in Indian literature. जो दूसरा आपका ग्रुप है काशवी वाला, उसके अंदर you have the book English Communicator. In 10th standard, the first poem, that is Frog and the Nightingale, is written by Vikram Seth. In 11th standard, we have Tale of Melon City. So he always has either written something, taking up the social ways, या अपना experience. So this tells about two different places. One is the Hindu Dharam Pashupatinath Mandir, and the second one is a Buddhist temple. और उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क. The Hindu temple is more noisy, more chaotic, whereas जो आपका बुद्धिस्ट का है very serene, calm, very clean. And then he has explained वहां स्ट्रीट्स में जो वेंडर्स होते हैं वो बिना मतलब के शोर नहीं मचाते हैं, how they manage their day-to-day business. So this is the chapter Kathmandu. You can see on the screen, at the very first, there is a summary. It's written by Vikram Seth. And this particular excerpt, ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं, this has been taken from his book Heaven Lake. Actual में वो जो है, he had gone to Tibet, मतलब वो चाइना से वापस आ रहे थे. तो चाइना से वापस आते हुए he had China to India. He had crossed Tibet, then Nepal. और नेपाल से कैसे वो वापस आए थे by flight. And why he came by flight? Normally he loved to travel, by bus and something. लेकिन कैसे उन्होंने वहां पर जो temples है वो देखा था. One is the Pashupatinath temple, the Hindu Dharam, and the second one is Bodhinath. As I said,
हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग पशुपतिनाथ इज वेरी फेमस एंड मुक्तिनाथ इज देयर विच इज ऑन द टॉप. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे. And he tells about the difference between the atmosphere. As I said, the Hindu temple is more chaotic, more unhygienic, बहुत dirty, filthy people, beggars. वहां पर इवन जो वहां पे बागमती रिवर है, इट हैज बीन polluted. Whereas जो आपका बौद्धि स्तूपा है, बौद्धीनाथ टेम्पल है, that area is very beautiful, completely different. वहां पर द एरिया इज काम, सीरीन, देर इज क्लीनलीनेस ऑल अराउंड. तो ही हैज डिस्क्राइब दिस about these two areas and how they are completely different. Then uske alawa he also has said that Kathmandu offers religious places, tourist destinations. If you have gone over there, we have beautiful monasteries and all. I went long back. हम लोग बहुत पहले गए थे. We went twice, in fact, once by bus and once by air. And you have the local shops like which is selling the local day-to-day cameras वगैरह, cosmetics, chocolates वगैरह होता है. तो जैसा बाकी सिटी है वैसा ही वो भी है, बट वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है. लाइक द वेंडर्स दे आर, मतलब जो फ्लूट वाला है वो बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाता है. बाकी लोग चिल्ला चिल्ला के अपनी चीजें बेचते हैं. ही वॉज जस्ट प्लेइंग द फ्लूट. एंड फ्लूट के लिए ही हैज गिवन वन एग्जाम्पल दैट म्यूजिक जो है इट यूनाइट्स अस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. कहीं पर उसका कुछ और नाम है, रीड है, तो कहीं पर फ्लूट है, बट स्टिल इट यूनाइट्स अस ऑल ओवर. देन ही हैड टू कम बैक, दो ही वांटेड कि वो नेपाल से जो है एडवेंचर करते हुए बस या ट्रेन से जाए, बनारस होते हुए ही वांटेड टू गो बैक, बट ही वाज वेरी टायर्ड, सो ही टुक अ फ्लाइट बैक and he came back to Delhi. So overall, this is a travel log. This is a travel log. पेपर में क्वेश्चन आपके एक आता है जो आपका पशुपतिनाथ को जो एक्सप्लेन किया है उससे. दूसरा आपका आता है व्हाट इज द कंट्रास्ट बिटवीन द टू. तीसरा व्हाई ही हैड टेकन द फ्लाइट. देन जो फ्लूट के बारे में उसने अलग अलग चीजें बताई है, द डिफरेंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूट, वो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर विथ NCERT. I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. मतलब he did not go for a very costly room. उसको सस्ते में ही मिल गया. काठमांडू is comparatively very cheaper than India. हमसे तो उनका बहुत है. The next morning with Mr. Shah's son and nephew, he had someone over there. I visit the two temples in Kathmandu that are more sacred to Hindus and Buddhists. मतलब बिल्कुल opposite. Now, what did he witness at Pashupatinath Mandir? उसने वहां क्या देखा? At Pashupatinath, outside which a proclaim, मतलब वहां पर एक नोटिस लिखा, प्रोक्लेम मतलब एक नोटिस लिखा है, एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली. इसका मतलब क्या है? मींस दिस इज क्वाइट डिस्क्रिमिनेटिव. आपका ये जो है बहुत डिस्क्रिमिनेटिव है कि आप सिर्फ हिंदूज को ही अंदर अलाउ करना चाहते हो. यू डोंट वांट टू अलाउ एनीवन एल्स, which is a kind of discrimination. There is an atmosphere of febrile confusion. पेपर में आया हुआ है. मीन्स कंप्लीट chaotic, पूरा एकदम उथल पुथल मचता हुआ. क्यों? प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउ, मंकी, पिजन, डॉग्स सब साथ में है. मतलब पुजारी भी एक तरफ है वहां पे, बड़े ये सर जैसे आप बनारस वगैरह में भी जाओगे ना, आपको पंडे पुजारी बड़े सारे मिल जाते हैं.
Then those who are selling the things, most of the time you will find people selling the this rudraksh over there. वहां पर रुद्राक्ष बहुत बेचते हैं. Then the tourist, we offer a few flowers. There are so many worshippers that some people try to get the priest attention and are elbowed. As elbowed मतलब कोनी मारकर उनको हटा दिया जाता है. दूसरे जो है उनको धक्का देते हुए आगे चले जाते हैं. दूसरे उनको धक एल्बोड मतलब एल्बो आपका कोनी. A princess of Nepalese royal house appears. Everyone bows and makes way. और तभी वहां पर एक मतलब कि उस वक्त में इट इज रिटन व्हेन नेपाल वाज अंडर द मतलब की मोनार्की. एंड ऑफ कोर्स अभी भी जो वहां पे प्रिंस वगैरह होते हैं दे गेट द ट्रीटमेंट. जो लोग उसको राजा के खानदान को बिलोंग करते हैं. सो व्हेन शी कम्स इन, सब लोग जो है सर झुकाकर उसके लिए जगह बनाते हैं. बाय द मेन गेट a party of saffron clad westerners struggle for permission to enter. उन लोगों ने गेरुए जो गेरुआ वस्त्र होता है, ऑरेंजिश कलर जिसको हम बोलते हैं, वो पहना हुआ है. हरे रामा हरे कृष्णा नॉर्मली इस्कॉन वाले होते हैं. And they want to come inside, but they are not allowed. Why they are not allowed? Because it is clearly mentioned that it is only for the Hindus. वो सिर्फ हिंदूज के लिए है. The policeman is not convinced that they are Hindus. Only Hindus are allowed. Therefore, मतलब कि उनको अलाउ नहीं किया जाता. एक तरफ ऐसा चल रहा है, दूसरी तरफ there are two monkeys which are chasing. यहां पर it is also a transferred epithet कि किस तरीके से दो आपसी लोग झगड़ा करते. A fight breaks out between the two monkeys. One chases the other who jumps onto a Shivalinga. वहां अगर आप गए हो, आई डोंट नो इफ यू हैव गॉन ओवर देयर, जहां मेन आपका टेम्पल है ना, दिस इज द टेम्पल, ये वाला. एंड आउटसाइड यू कैन सी नंबर ऑफ शिवलिंगास ओवर देयर. बहुत सारे शिवलिंग हैं बाहर, मोर देन 1000 छोटे छोटे वहां बने हुए हैं. तो उसको जंप करते हुए वो जो बंदर हैं वो दोनों भाग रहे हैं. स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स एंड डाउन टू द रिवर. और पीछे की तरफ आपकी सीढ़ियां हैं जहां आपका रिवर बागमती जो है ये आपका आता है. जो बागमती रिवर है क्लास 9, फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज द रिवर विच मतलब यहां पर कहा जाता है मतलब पूरी दुनिया में देर इज वन मोस्ट सेक्रेट स्टोन, शालिग्राम, विच इज द फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु. और शालिग्राम की ही हम शादी तुलसी से करते हैं, तुलसी माता से. एंड वर्ल्ड में जितने जो मतलब कि मेन होते हैं वो यहीं पाए जाते हैं. तो जो रिवर बागमती है इट हैज लॉट्स ऑफ सिग्निफिकेंस एज पर हिंदू स्क्रिप्चर. अब कॉप्स, कॉप्स मतलब डेड बॉडी. अब यहां पर वो क्या बताना चाहता है, वो ये बताना चाहता है कि जो हिंदू वाला जो एरिया है ना, इट इज क्वाइट पोल्यूटेड. द रिवर इज पोल्यूटेड, द एरिया इज अनहाइजीनिक. वहां पे लोग जो है एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं. वहां पर जो है केओटिक सा आपका सिचुएशन है. पानी जो है रिवर है उसके अंदर जो है एक तरफ डेड बॉडी को क्रिमेट किया जा मतलब के पास क्रिमेट किया जा रहा है ऑन द बैंक्स. बैंक्स मतलब किनारे पर. वॉशरमैन दूसरी तरफ जो मतलब कि धोबन है, दे आर वॉशिंग द क्लोथ्स. यानी कि वो जो गंदा पानी है वो भी नदी में जा रहा है और बच्चे उसमें नहा रहे हैं. बट आयरॉनिकल क्या है कि दैट इज अ होली रिवर. आयरॉनिकल क्या है, दैट इज अ होली रिवर. हम उस रिवर को क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब कि पवित्र है. लेकिन हम पवित्र रिवर में क्या कर रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, उसके मतलब कि किनारे पर डेड बॉडी भी जला रहे हैं. और दूसरी तरफ from a balcony a basket of flowers and leaves, old offerings now wilted. Wilted मतलब सूखे हुए, dried, जो सड़ चुके हैं उनको ऊपर से रिवर में पानी में फेंका जा रहा है. और फिर भी हम क्या बोलते हैं, द रिवर इज होली.
अ स्मॉल श्राइन, श्राइन मतलब द प्लेस ऑफ वर्शिप, मंदिर, छोटा सा वहां पर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ स्मॉल श्राइन प्रोट्रूड मतलब आधा डूबा हुआ है, आधा डूबा हुआ है, फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, रिवर के किनारे पे जो स्टोन प्लेटफॉर्म उसमें आधा डूबा हुआ है। और ऐसा माना जाता है, व्हाट इज द मतलब कि वहां पे क्या माना जाता है कि जब व्हेन इट इमर्जेस फुली, जब ये पूरा ऊपर आ जाएगा, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप एंड इविल पीरियड ऑफ कलयुग विल एंड ऑन अर्थ। मतलब उसको काली माता का एक रूप माना गया है, क्योंकि हम कहते हैं ना ये कली युग है, दिस इज कली युग। तो उसके अंदर जो मात मतलब कि गॉडेस है वो वहां से चली जाएगी, और जो ये दुनिया है, कलयुग है, वो खत्म हो जाएगा, वापस सतयुग आएगा। ऐसा तो बहुत सारे हमारे हिंदूज के धर्म में कहा गया है कि व्हेन द इविल इज ऑन द टॉप, जब माँ बाप की कोई इज्जत नहीं होगी, गुरु की इज्जत नहीं होगी, जब एक दूसरे के लोग खून के प्यासे हो जाएंगे, व्हेन पीपल विल लव, तो ऐसा बहुत सारा कुछ लिखा है कि कलयुग उस वक्त खत्म होगा। तो उनका मानना है, व्हाट डू दे थिंक, कि वो जो पत्थर है, वो जो श्राइन है, जब वो पूरा ऊपर आ जाएगा तो कलयुग खत्म हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मतलब कि उसके पीछे क्या मिथ है, व्हाट इज द मिथ बिहाइंड इट। ठीक है। अब ये कौन सा था, ही हैड गॉन टू द बुद्धिस्ट टेम्पल, नो सॉरी, टू द पशुपतिनाथ टेम्पल। नाउ ही प्रोसीड्स टू द बौद्धनाथ स्तूपा। अब वो जाता है बुद्ध जी के मंदिर, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू। वहां पर क्या है, देर इज अ कंट्रास्ट, अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, बिल्कुल खामोशी, पीसफुल, एकदम शांत, वहां कंप्लीट केओटिक। इट्स इमेंस वाइट डोम, उसका जो ऊपर का गुंबद है, ये वाला ऊपर देखो व्हाइट कलर है, दैट इज ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर लगता है देखने में। इज रिंग्ड बाय अ रोड, रिंग्ड बाय मतलब सराउंडेड बाय, रिंग्ड बाय मतलब सराउंडेड बाय। तो व्हेन ही, वहां पर रिंग्ड बाय मतलब सराउंडेड बाय। एंड हेयर यू मे गेट अ क्वेश्चन, रिंग के दो मीनिंग होते हैं, वन इज द रिंग विच वी वियर ऑन अवर फिंगर, एंड रिंग मीन्स सराउंडेड बाय अ रोड, चारों तरफ वहां पर जो है रोड्स है। स्मॉल शॉप स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, बाहर की तरफ आपकी छोटी छोटी दुकान है। एंड ये सब वहां पे जो तिब्बतन्स हैं, तिब्बतन्स आर पार्ट ऑफ चाइना एज इट इज सेड, वहां से जो लोग नेपाल आ गए हैं वो लोग, फेल्ट बैग्स काइंड ऑफ जो टांगने वाले, दीज आर मतलब कि तिब्बतन प्रिंट्स, देन सिल्वर ज्वेलरी यहाँ आप खरीद सकते हो। देर आर नो क्राउड्स, यहाँ कोई मतलब शोर शराबा नहीं है, एज इट वॉज देयर इन द पशुपतिनाथ मंदिर। देर इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस, हेवन मतलब बिल्कुल सेफ, और बिजी, चारों तरफ बिजी स्ट्रीट है, लेकिन अगर आप मंदिर के पास जाओगे वहां यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ क्राउड, नो हजल बजल, नो पोल्यूशन, नथिंग लाइक दैट। काठमांडू इज vivid, means different, mercenary, religious, with small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest street। अगर आप काठमांडू जाते हो तो वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से मंदिर, रिलीजियस स्मॉल श्राइन्स मतलब छोटे छोटे, एंड आपको जगह जगह पर डेटीज मतलब मूर्तियां, डेटीज मतलब मूर्तियां, आपको जो है माला पहने हुए भगवान की मूर्तियां वगैरह आपको वहां पर बहुत सारे दिखाई देंगे, बहुत सारे। अलोंग द नैरोवेस्ट, जो सबसे छोटे हैं वहां पर भी, जो बिल्कुल तंग गली जिसको हम बोलते हैं, एंड ऑल्सो विद द बिजिएस्ट स्ट्रीट, जहां पर भी आप जाओगे वहां पर यू विल फाइंड द श्राइन्स, मतलब यू विल फाइंड नंबर ऑफ टेम्पल्स ऑल ओवर देयर।
fruit sellers, flute sellers, hawkers of postcards. You will find the postcard. आजकल तो we are having the magnets. पहले postcards होते थे जिसमें वहां की तस्वीरें होती थी, पीछे ऐसे लिखा हुआ होता था. एज अ मेमेंट्री हम लोग बोलते हैं, हम लोग लेकर आते थे, और मतलब कि मेमेंटो हम लोग वहां से लेकर आते थे. मर्सनरी होता एनीथिंग विच रिलेट्स टू मनी, मतलब पैसा कमाने के लिए. आपको जगह जगह पर यू विल फाइंड द टेम्पल्स जहाँ लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं. देन मतलब कि अदर एरियाज. देन वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, बिकॉज इट्स अ टूरिज्म प्लेस, तो यू विल फाइंड द कॉस्मेटिक्स. फिल्म रोल्स, पहले तो लोगों के पास जो आपकी कैमरास होते थे उनमें रोल लगता था, अभी तो वी आर हैविंग द डिजिटल वन, तो वी डोंट नीड इट. And shop selling Western chocolate or copper utensils, Nepalis antiques. फिल्म सॉन्ग्स, ब्लेयर, ब्लेयर मतलब इको, जोर जोर से बजना. ब्लेयर आउट मतलब इको, जोर जोर से बजना. फ्रॉम द रेडियोस, कार हॉर्न साउंड्स, जोर जोर से कार के हॉर्न की, बाईसाइकिल के. स्ट्रेट कॉल लो क्वेश्चनिंग एट मोटरसाइकिल्स, और जो आपके गाय भैंसों वो रोड को रोक कर खड़े हो जाते हैं. एंड वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स, और जो लोग बेच रहे थे वो शोर मचाते हैं. आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, वो जो है वैसे घूम रहा है. माइंडलेसली मतलब विदाउट एनी एम, विदाउट एनी एम मतलब वो जस्ट casually, you can say casually, he is moving. And here it is alliteration. By a bar of मार्जीपान. मार्जीपान जो होता है वो आपके वहां पे बड़ा फेमस होता है, जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना चिक्की, मेड ऑफ पीनट्स, वैसे होता है. इट इज मेड ऑफ द आमंड्स. अ कॉर्न ऑन द कॉब, दैट इज भुट्टा, जिसको हम अपनी हिंदी में कॉर्न ऑन द कॉब मतलब जो भुट्टा आपका भुना हुआ होता है. इन द चारकोल ब्रेजियर्स ऑन द पेवमेंट, जो नीचे आप मतलब कि उसमें भट्टी में लगा के देते हैं, जिस पर नमक मिर्ची लगा के देते हैं, उसने वो खरीदा. अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, कुछ कॉमिक्स खरीदे. एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट. I don't know how many of you are now aware of Reader's Digest. Reader's Digest was one of the very famous children book in the earlier. मतलब आपको जितनी भी anything which is related to comedy, story, children से related जितनी भी information बड़ा अच्छा होता है. It's a very famous मतलब की book. All this I washed down with, मतलब all this I washed down मतलब उसने इन सबको गल्प किया, मतलब उसने थोड़ा सा मार्जिपान खाया, थोड़ा सा उसने उसका नाम क्या है वो भी भुट्टा खाया, फिर उसके बाद उसने जो है उसको पचा लिया विथ कोको कोला जस्ट. एंड अ नॉजिएटिंग ऑरेंज ड्रिंक. नॉजिएटिंग मतलब समथिंग विच वॉज गेटिंग, उसको ऐसा लगता है ही वुड प्यूक आउट एंड फील मच बेटर फॉर इट. उसे सब कुछ लिया, कोको कोला लिया, उसके बाद उसने ऑरेंज ड्रिंक भी ले लिया. आई कंसिडर, फिर उसके बाद वो सोच रहा था व्हाट टू डू. आई कंसिडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम. क्या करूं मैं, कौन से रूट से जाऊं. इफ आई वर प्रोपेल्ड, प्रोपेल्ड मतलब कंपेल्ड बाय एंथुजियाज्म फॉर ट्रैवल पर से मतलब अगर मुझे कोई ट्रैवल के पर्पस से बोलेगा तो आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना. पहले मैं यहाँ से बस से जाऊंगा, जो मैंने आपको बताया था कि बिहार के बॉर्डर तक आपका जाता है, फिर वहां से पाटना. देन सेल टू गंगा पास बनारस टू इलाहाबाद, वहां से बाय रिवर. एंड देन अप यमुना पास आगरा टू दिल्ली. मतलब अगर उसका बस चलता, इफ ही हैड द चॉइस, अगर उसके पास चॉइस था, तो शायद वो बस, ट्रेन, सॉरी बस या फिर वाटर से जाना पसंद करता. आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक. होम सिक मतलब ही वॉज रिमेम्बरिंग हिज होम, घर की याद आ रही, बहुत थका हुआ था. एंड टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त. ये पेपर में 1 मार्कर में आया था कि व्हाट वाज द डे. 1 मार्कर में आया था. गो होम, आई टेल माई सेल्फ, मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम. मतलब फिर वो कहता है भैया घर सीधे चलो, कोई जरूरत नहीं है बसों में या फिर बोट में चक्कर खाने की. देयरफॉर
he went to the Nepal Airlines office and buy a ticket for tomorrow's flight. अब वो टिकट लेकर जब बाहर आता है तो ही लुक्स एट द फ्लूट सेलर। इससे आपके पेपर में कई क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम दिस, अभी जो आने वाले दो पैराग्राफ हैं उनसे। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। मतलब चौराहा, स्क्वायर इज द चौराहा आपका। इन हिज हैंड इज अ पोल विद एन अटैचमेंट। पोल विद एन अटैचमेंट मतलब ऐसा जो बना होता है जिसमें फ्लूट टंगे हुए होते हैं। इफ यू हैव सीन दिस, जो मेले वगैरह में खड़े होते हैं। फ्रॉम द एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरी प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब वो नीचे की तरफ जो है वो डूब, मतलब कि ऐसे लिखे लिखे हुए हैं, ऐसे टांगे हुए हैं, टंगे हुए हैं इनफैक्ट। लाइक द क्विल्स ऑफ द पॉर्क्यूपाइन्स। क्विल्स होते हैं आपके कांटे। पॉर्क्यूपाइन जो होता है इट हैज द क्विल्स, उसके कांटे होते हैं। नॉर्मली इट इज द एनिमल विच यूजेस दैट क्विल्स टू बीट इट्स एनिमी। वो कहते हैं कि जैसे वो कांटे लगे हुए हैं ना पॉर्क्यूपाइन के, वैसे वो फ्लूट लगे हुए थे। दे आर ऑफ बैम्बू। दे आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स। Cross flutes and recorders are the kind of flutes. From time to time, he stands on the pole of the ground, selects a flute, plays it for a few minutes. अब वो जो फ्लूट सेलर है ना, उसको कोई जल्दी नहीं है कि उसके फ्लूट बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे। वो क्या करता है, टाइम टू टाइम थोड़ी देर बैठता है, फिर कोई एक फ्लूट को निकालता है, फिर उसको बजाएगा, फिर बैठ जाता है। द साउंड क्लियरली अबाउट द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉक्स क्राई। मतलब उसकी जो फ्लूट की आवाज है वो वहां का जो शोर शराबा है, वहां जो हॉकर्स शोर मचा रहे हैं उससे भी ज्यादा तेज है। ही प्ले स्लोली मेडिटेटिवली, मतलब बहुत सोच समझ के, बिना, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले। कोई दिखावट नहीं है, देर इज नो शो ऑफ, कोई दिखावट नहीं। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स। शाउट आउट इज वेयर मतलब जो चिल्लाते हैं सामान खरीदने के लिए, वैसे वो चिल्ला नहीं रहा है। ही इज नॉट शाउटिंग टू बाय हिज थिंग्स। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, मतलब कभी कभी उसको कोई उसके उसे फ्लूट खरीदता। ही मेक्स अ सेल मतलब ही सेल्स ऑफ हिज फ्लूट, बट इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे, एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज। मतलब उसको बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ही इज मोर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग द फ्लूट। अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर। बीच बीच में वो अपना फ्लूट बजाना भी बंद कर देता है और पास में जो दूसरे दुकानदार है उसे बातें करता है। आई इमेजिन दैट दिस हैज बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स। मतलब इमेजिन मतलब ही मेक्स एन अजम्पशन। वो अज्यूम करता है कि शायद सालों से ये ऐसा ही रहा होगा। उसको कोई इतना मतलब कि वो शोर नहीं मचा रहा कि प्लीज बाय माय थिंग्स, उसको कोई नहीं है। जस्ट एंजॉय, इज एंजॉयिंग हिज फ्लूट। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ फ्रॉम द स्क्वायर। टीयर मतलब सेपरेट, वहां से उसका जाने का मन नहीं है। क्यों? फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी। मुझे फ्लूट्स बहुत पसंद है, मीन्स अ राइटर।
It is at once the most universal and most particular of sounds. मतलब universal means it is everywhere. We may call it by different names, but it is everywhere. And it has got the most beautiful sound. There is no culture that does not have its flute. मतलब अलग अलग कल्चर में उसका अलग अलग नाम है. लाइक द रीड ने, जो रीड से बनता है, रीजन अनवांटेड. द रिकॉर्डर, जो अभी यहाँ पर बिक रहा था. द जापानीज शाकुहाची. द डीप बांसुरी. मतलब अगर आप उसको अलग अलग नाम से जानते हो, तो दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूट्स. द क्लियर और ब्रेथी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका. द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स. मतलब साउथ अमेरिका में जो है थोड़ा क्लैरिटी रहता है, तो चाइनीज वाला थोड़ा आवाज ऊंची होती है उसकी. बट whether it is Japan or India, whether it is America or China, every country has flute as one of its musical instrument. Each has its specific fingering and compass. मतलब किस तरीके से उसे बजाया जाता, how it is played. It weaves its own associations. मतलब फ्लूट का अपना ही एक, मतलब it has its own association. Yet to hear any flute is, it seems to me, to be drawn into the commonality of all mankind, that is music. आप कोई भी फ्लूट सुनो, चाहे आप इंडियन सुनो, चाइनीज सुनो, अमेरिकन सुनो, या कोई और, सबका जो है एक चीज कॉमन है, एंड दैट इज द म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स phrases एंड sentences टू द ह्यूमन वॉइस. मतलब द वे इट इज played, the sweetness, that's very very common. Its motive force too is living breath. मतलब वो जो मोटिवेट करता है, जो हम उसका जो एम है, वो भी है फॉर अ लिविंग ब्रेथ. इट गिव्स अस न्यू होप, न्यू ब्रेथ. इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन. और अगर आपने कभी देखा हो हाउ बांसुरी इज प्लेड, तो व्हेन द, जो उसमें स्पेसेस होते हैं, जो फिंगर्स होते हैं, नॉट एवरी फिंगर इज प्लेस्ड. बीच बीच में जो है, इट इज द एयर दैट प्रोड्यूसेस दैट साउंड. तो वो एक हम लोगों को जो है, इट गिव्स अस अ मोटिवेशन. दैट इज द लाइफ. इट इज फिनोमिनल. एक फिनोमिना है. जैसे ब्रेथ, हमारी सांस कैसे होती है, हम सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं. देर इज अ पैटर्न, देर इज अ पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग. हमारे ब्रीदिंग का एक पैटर्न होता है. वी इनहेल, वी कीप इट, वी एक्सहेल. सिमिलरली जो आपका फ्लूट होता है, उसको बजाने का भी देर इज अ पैटर्न. There is a change in the finger system, there is a change in the air system which produces that voice. So that is what he wants to give, the common thing between the humans and the flute. That I can be so affected by a familiar phrases on the Bansuri surprises me at first. For on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainty, have not invested them with the significance I now do. वो कहता है कि मुझे नहीं पता, I don't know, but this time while he was on his travel,
क्योंकि ट्रैवलिंग उसका एक शौक है, ही हैज बीन ट्रैवलिंग। तो कहता है कितनी बार मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम बीन कैप्टिवेटेड बाय द साउंड ऑफ द बांसुरी, ऑफ द फ्लूट। that for on the previous occasions, कहता जब मैं इतनी लंबी बार छुट्टी करके जब मैं घर वापस जाता हूँ, तो नॉर्मली आई हैव नेवर टेकन दिस मच ऑफ डिटेल्स, कहाँ वहां पर क्या हुआ था, अ जनरल विजिट होता था। बट दिस टाइम वो कहता मैंने इंट्रिकेट छोटे छोटे डिटेल्स देखे, लाइक द मतलब की chaos in the temple, the serenity in the Bodh Stupa, the flute seller, how he was selling, how he was playing, और जो बांसुरी है वो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, हाउ मेनी कंट्रीज व्हाट काइंड ऑफ मतलब की फ्लूट दे आर हैविंग। कहता मैंने ये सब चीजें पहले कभी नोटिस नहीं किया था, बट दिस ट्रैवल टू काठमांडू ऑन हिज वे रूट फ्रॉम चाइना टू इंडिया, इसमें उसने ये छोटी छोटी जो चीजें थी, he had noted and he had loved it, he had taken those memories with him. So that is the chapter what we call as Kathmandu. Even though the आपके जो NCERT questions हैं, they are also very important, but some of the questions they have come from outside. Basically, let me just put it into one gist. ये जो chapter है, this is a travelogue, आता है पेपर में, वन मार्कर में आया है, आई मीन टू से। Travelogue means a document, a documentary on your travel account. आजकल we have the blogs, आजकल तो हमारे पास blogs होते हैं, and this is one small excerpt जो उसने अपनी बुक में लिखी थी हेवन लेक, वो उसके उसके अंदर से है। दिस इज अबाउट व्हेन ही हैड गॉन टू चाइना। चाइना से जब वो वापस आ रहा था, तो ही हैड टेकन एन रूट टू नेपाल। चाइना से अगर आप बॉर्डर्स को देखते हो, द मैप ऑफ इंडिया, तो चाइना से तिब्बत, तिब्बत से नेपाल, नेपाल से वो जो है बिहार, वहां से उसको जाना था, जाना उसको वहीं से था, बट लेटर ही हैड टेकन द फ्लाइट फ्रॉम नेपाल, डायरेक्टली नेपाल से उसने जो है दिल्ली का फ्लाइट ले लिया था। सो ऑन हिज शॉर्ट ट्रिप टू काठमांडू ही हैड नोटिस्ड अ वन डे ट्रिप, जिसमें उसने पहले तो दो बिल्कुल कंट्रास्ट टेम्पल्स देखे। वन ऑफ द बुद्धा, ये वाला जो ऊपर बना हुआ है, अब मतलब कि जो डोम वाला बना हुआ नीचे, द वाइट वन, उसके चारों तरफ जो है छोटे छोटे आपके जो है दुकान भी थे। बट इफ यू गो थोड़ा अंदर की तरफ जाते हो, तो इट वॉज ऑल वेरी पीसफुल। Whereas when he reached Pashupatinath, so there it was like the humans and the animals, birds, even the corpse, dead body, वो भी सब साथ में ही थे। कहीं जो है मंकीज ऊपर चढ़ के भाग रही थी, कहीं पर वेंडर्स चीजें सेल कर रहे थे, प्रीस्ट किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा था, एंड रिवर विच इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट होलीएस्ट रिवर, वो रिवर जो है इट हैड बीन पोल्यूटेड। कहीं से जो लोग हैं वो लोग मतलब कि पूजा के पत्ते फेंक रहे थे, फ्लावर्स फेंक रहे थे, कहीं पर कॉप्स जो है उसको साइड में जलाया जा रहा था, दूसरी जगह पर लोग नहा रहे थे, कपड़े धो रहे थे। तो देयर वाज अ कंप्लीट कंट्रास्ट। देन ही केम ऑन टू द मेन रोड, वहां से घूमते घूमते फिर उसने वैसे वहां पे जो लोकल चीजें मिलती हैं, लाइक भुट्टा उसको मिल गया वो, एंड देन सम स्वीट, ये सब कुछ खाया। उसके बाद खाने के बाद थोड़ा सा पी लिया अपने आप को गल्प करने के लिए, सब चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए। एंड देन अल्टीमेटली उसने जो है वो वहां पर खड़ा हुआ, उसने सोचा व्हाट शुड आई डू, वेदर आई शुड टेक अ बस। एज आई सेड, आपका काठमांडू से पोखरा, आपका जो वहां से आप जाते हो, एंड देन यू हैव टू टेक अ बस टू द पोखरा तक देते हो, फिर वहां से आप नीचे उतर के आते हो, तो यू हैव टू क्रॉस द गेट, वहां एक गेट सा बना हुआ। वंस यू क्रॉस द गेट यू कम टू द बॉर्डर ऑफ बिहार, वहां से पाटना। फिर वहां से ही वांटेड कि वो जो है बाय द वाटर वे ही वांटेड टू कम, but then he was so tired, therefore he decided that he should not take this route, instead he must take the route of flight। अब ये सब चीजें सोचते सोचते जब वो बाहर आया, तो उसको एक चीज और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, एंड दैट वाज
द फ्लूट सेलर, यानी कि जो फ्लूट भेज रहा था, उसने एक चीज नोटिस की कि लाइक ऑल अदर, जो बाकी जो लोग थे वो चिल्ला रहे थे अपनी चीजों को लेने के लिए, बट दिस फ्लूट सेलर वॉज कंटेंटेड, ही वॉज ग्रेटिफाइड, ही वॉज सेटिस्फाइड। अगर कोई खरीद भी रहा था तो ही वॉज नॉट मच इंथुजियास्टिक कि हाँ इसको बेचना है, जस्ट सोल्ड। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग दैट फ्लूट। उसको बेचने से ज्यादा उसको बजाने में मजा आ रहा था। उसके पास दो तीन डिफरेंट मतलब की वेराइटीज थे, उसके पास जो डंडा था उसमें लगे हुए थे। ही वुड ओकेजनली टेक देम, और कभी कभी आस पड़ोस से भी बात करता था। दिस शोड दैट ही वॉज अ रेगुलर पर्सन ऑन दैट स्ट्रीट। वो मतलब कि वहां अनजान नहीं था, बिकॉज कैजुअली ही वॉज टॉकिंग। नॉर्मली हम किससे कैजुअली बात करते हैं? किसी अनजान से तो जाकर हम नॉर्मली बात नहीं करना शुरू करेंगे ना, जो जान पहचान होगा मुझसे अच्छे से बात करेंगे। सो ही वॉज स्पीकिंग टू द पर्सन वेरी कैजुअली। पेपर में आया हुआ है कि कैसे पता है कि वो वहां पर ये चीज कई सालों से कर रहा है, बिकॉज द वे ही वॉज स्पीकिंग टू द फ्रूट सेलर, इट लुक दैट ही वॉज फॉर्मिलियर टू दैट प्लेस। अब फ्लूट सेलर की जो मतलब की इंपॉर्टेंस के बाद वो बताते हैं कि फ्लूट जो है, इट हैज ऑलवेज कैप्टिवेटेड द राइटर। राइटर को फ्लूट हमेशा अच्छा लगता था। देन ही टॉक्स अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूट, दैट इज द रीड, देन मतलब की बांसुरी, मतलब अलग अलग तरीके के। बट वो कहता है सब में एक चीज कॉमन है, सब म्यूजिक देते हैं। कोई लो पिच में देता है, कोई लो हायर साउंड में देता है, बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम कॉमन थिंग, दैट इज म्यूजिक। म्यूजिक इज यूनिवर्सल विच बाइंड्स अस। And with this, he ends up this travelogue telling that for the previous few years, he has been traveling. Travel तो वो करता रहा है, but कभी उसने इतनी छोटी सी चीज को, just like बांसुरी, he had never thought of that. But now he was not only feeling that, he was also taking those memories with him. पर उसने कभी इतना ध्यान से इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं किया था कि कितना सिग्निफिकेंस होता। This is the chapter Kathmandu. See, as I have already twice told that this is a travelogue. आपके पेपर के अंदर डायरी एंट्री और राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, मतलब कि एक्सप्लेनिंग एनी प्लेस विच यू हैव विजिटेड। ये इससे बहुत कॉमन क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट ईयर जो 9th में बच्चे थे उनके स्कूल्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे। So it is not necessary that you are writing about Kathmandu, any place. तो जब हम किसी जगह पर जाते हैं, from the point of view of exam question, when we go to some place, what happens is most of the time हम क्या करते हैं, we look into the main, आपके जो attractions होते हैं वहां पर हम उन्हीं चीजों को देखते हैं। but the real fun is when you are able to see each and every small things, वहां का local cuisine, वहां की लोकल स्ट्रीट्स, और वो आपको जो है ना मेमोरी से दिस रिया। एंड ये मैं मतलब कि नॉट बिकॉज दिस इज अ चैप्टर, इन द रियल सेंस आई एम टेलिंग यू। इंस्टेड व्हेन वी टॉक अबाउट एनी एरिया, हम कहते हो अच्छा हम तो उस सिटी में गए थे तो हमने क्या देखा था, हमने वहां पर वो मतलब जो वहां मेन टेम्पल था वो देखा था, वहां पर जो मेन वो था, उसकी जगह आप लोकल में चले जाओ and watch all those areas which may not be there on the Google, which may not be there on the places of interest. But that you will learn. You will learn about the culture, you will learn about people's behavior, you will learn about the local cuisine, वहां पे क्या चीजें बिकती हैं. And this way you are able to enjoy every moment and you are able to take those memories with you. आप उन memories को अपने साथ में लेकर आ सकते हो. So that's one of the main purpose of this chapter. अगर आपके पेपर में डायरी एंट्री या फिर लेटर में लिखने को आता है तो यू शुड ऑल मतलब आपको जो है यू कैन यूज दीज कीज, कि आप उन जगह पे गए थे तो वहां आपने लोकल चीजों को देखा था, वहां पर आपने लोकल मतलब वो खरीदा था, एंड दैट वुड हेल्प यू आउट टू नो अबाउट दैट प्लेस बेटर। वो जो दो उसने देखे थे मेन,
वहां उसको इतना कुछ नहीं दिखा जितना कि उसको फ्रूट सेलर में दिखा था. So this is how we can learn. We can make memories. We can create memories. That's the chapter Kathmandu.